So today what we are going to discuss is about the IMF. IMF के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे and this we will include this discussion in the GS3 playlist. Although this is a topic, we can consider it to be a topic of GS3 as well as GS2. अगर हम GS2 में देखें तो towards the end, अगर हम सिलेबस को देखें तो in towards the end there is this important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. So you can also consider it as a part of GS2. However, we will keep it in the GS3 playlist for your reference. So आज हम जो डिस्कस करेंगे that will be a more holistic view about holistic understanding about the IMF, its organizational structure, objectives, the SDR. We will also review the role of the IMF in the present times. So a question, अगर before we start off, we can think about what are the kind of questions that we can think of when it comes to IMF. तो ये किस तरीके का question हो सकता है? If we look at the question and then try to understand the topic, it would be easier for us to focus. It would be easier for us to know where we are supposed to pay more attention. So here a question है यहाँ पे, critically analyze the role, potential and performance of IMF in the present times. And there's another question here, what are the main criticisms of the IMF? Discuss. And as we discuss, but we will discuss it in detail more. And we will discuss everything, the organizational structure, objectives, SDR, review of its role. Again, it's expected that थोड़ा सा basics होगा आपका. And so we can go into this. Now, अब जब हम International Monetary Fund की बात करते हैं, so it is an organization of how many members? It has 189 members. 189 members हैं and member countries, and each country has a representation on the IMF's executive board. IMF का एक executive board है. We will see the organizational structure in यहाँ, and उसका जो representation है that is in proportion to its financial importance. So जो सबसे powerful countries हैं global economy में, उनके पास सबसे ज़्यादा voting power है. So they have the most voting power. So voting power is divided according to the power that they hold in the global economy. So when we talk about the aims of the IMF, what is the aim of the IMF? See, IMF का main aim है monetary global level पर monetary cooperation को foster करना, ये ensure करना कि एक financial stability हो, international trade को facilitate करना, and to promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world. So इसमें कोई explain करने वाली चीजें नहीं है. This is a very clear cut. It's written in a very clear manner कि क्या है aims IMF के, right? Now there are the three main roles of the IMF, about which we'll see in a while, but very quickly we'll just try to understand the history of the IMF. Though it's not very relevant for us to go into that much detail about the history of the IMF. We would rather be wasting time if we spend too much time अगर हम ज़्यादा history of the IMF की बात करें तो, because it is not that relevant for us, but we have to have an idea about it. तो के end के बाद ये एक conference हुआ था ब्रेटन वुड्स में, that is the UN conference in ब्रेटन वुड्स US में 1944 में. And यहाँ पर तीन institutions came into being, the World Bank, the IMF and the GATT. And GATT बाद में जाके the WTO बन गया and all of that is there. तो यहाँ पर इस particular time पर 44 countries थी, and यहाँ पर they decided कि इनको एक framework बनाना चाहिए जिसके थ्रू एक economic cooperation जो है achieve किया जा सके, एंड ताकि जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस हुए थे वो ना हो. ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s में, तो वैसी चीज फिर से ना हो, इसीलिए ये सब साथ में आए थे एंड दे वांटेड टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. एंड यहाँ पर ये था कि कंट्रीज जो हैं दे वर नॉट एलिजिबल, they were not eligible to become members of the World Bank, जिसको International Bank for Reconstruction Development भी बुलाया जाता है, जब तक they were not members of the IMF. So this was a prerequisite. तो Bretton Woods Agreement के हिसाब से what IMF did was it wanted to encourage financial cooperation.
So इसके लिए what it did was it introduced a system of convertible currencies at a fixed exchange rate system. ठीक है, fixed exchange rate system था. At that time they said कि they replaced gold with the US dollar, in the sense they had gold at the back end कि अगर आपके पास $1 is equal to some amount of gold, that was actually इस टाइम पर ये सिस्टम था कि $35 for 1 ounce of gold, so something like that was there. गोल्ड बैक एंड पे रख के they had come up with a fixed exchange rate system. And we do not have to go into that much detail about all of this history of this, but still we should have an idea, and which is why हम यहाँ पर इसको discuss करेंगे. So the thing is, see, after the Bretton Woods system, ये जो system था fixed exchange rate का, so ये जो Bretton Woods system है, this was a system of fixed exchange rates, वो 1971 में जाके collapse हो गया. 1971 में ये वाला system जो है collapse हो गया, and the IMF then promoted something that was known as floating exchange rate. अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होगा, द एक्सचेंज रेट ऑफ योर करेंसी, कंट्रीज करेंसी वुड बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस रिलेटेड टू वन अनदर. एक करेंसी $1 कितना इंडियन रुपीज होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? अगर हम प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें, सो दैट बी प्योरली डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस. तो बट वी हैव अ हाइब्रिड सिस्टम, वी हैव मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जहां पर सेंट्रल बैंक जो है रह के इंटरवीन करता है जहां एज एंड व्हेन इट फील्स नेसेसरी. अब क्या कि 1997 में ईस्ट एशिया में एक क्राइसिस आ गया. देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस दैट स्वेप्ट ओवर ईस्ट एशिया. हो क्या रहा था एट दैट टाइम? व्हेन यू हैव रेड अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, we have a capital account and we have something known as a current account. तो ये East Asian countries जो हैं, what they did was, countries such as Thailand, Indonesia, Korea, ये सब what they did was they kept full capital account convertibility. और इससे इनके पूरे इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो गया. What is capital account convertibility, current account convertibility? जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं, सो देयर आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. सो यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स. व्हेन वी हैव द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में अगेन फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू विजिबल्स एंड इनविजिबल्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, एंड देन देयर इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. अब बैलेंस ऑफ बेसिकली करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो वी हैव current account में basically imports, exports, whatever money is coming and going through imports and exports, that is a part of the current account. Services की import और export से जो पैसा आता है या जाता है बाहर, that is a part of the current account. Interest, अगर कोई लोन है और अगर इंडिया में कोई लोन ले रहा, if someone borrows money, let's say India has taken a loan from some other country. ठीक है, India has taken a loan from some other country. अब वो जो लोन लिया जाएगा, the money that will come in and the loan amount is going to be part of capital account. but जो interest India देगा, that will form a part of the current account. Similarly, अगर there are shares, तो उसमें जो डिविडेंड मिलेगा या जो इंटरेस्ट मिलेगा on bonds, so that will form a part of the current account. रेमिटेंसेस जो है, अगर बाहर से कोई पैसा भेज रहा है टू इंडिया, सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है? एफपीआईज. इंडिया में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या अगर इंडिया किसी बाहर की कंट्री को लोन दे रहा है, सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट. इंडिया अगर लोन ले रहा है, सो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द करंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. तो इस तरह की चीजें जो इंटरेस्ट होंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. अब फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि देयर इज नो लिमिट. कोई लिमिट नहीं लगाया गया है कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा. लेट अस से देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू इंपोर्ट सर्टेन थिंग्स. तो क्या एक लिमिट है कि कितना इंपोर्ट किया जा सकता है? अगर देयर इज फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, देन देयर विल बी नो लिमिट ऑन दैट. या कुछ एक्सपोर्ट करना है, सो देयर विल बी नो लिमिट ऑन दैट. Import exports form a part of the current account.
कन्वर्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगा। अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं होगा। इन योर कंट्री देयर कैन बी पीपल कैन कम एंड डू कंप्लीट एफडीआई, 100% एफडीआई एफपीआई कर सकते हैं। तो फिलहाल इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली अलग टॉपिक हो सकता है विच वी कैन डिस्कस इन सम अदर वीडियो इन आगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिबेटेबल टॉपिक कि इंडिया को क्या करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर देना चाहिए या नॉट। सो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अ टॉपिक फॉर that will become another very long discussion. But अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट एज FDI, FPI, all these and investments, capital account जो है cross border movement of capital, it involves cross border movement of capital by way of investments, loans. तो ये सारी चीजें investments, loans form a part of the capital account. इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है या जो डिविडेंड मिलेगा या फिर जो लोन्स में जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या जो लोन्स से इंटरेस्ट आता है अगर इंडिया लोन दे रहा है, सो ऑल दैट गोज टू द करंट अकाउंट। तो क्या हुआ था, ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के कारण जो क्राइसिस आया था ईस्ट एशियन कंट्रीज में। एंड तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के कारण एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था 1997 के पीरियड में। क्या हुआ था कि वहां पे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दिया गया था बेसिकली, और उसकी वजह से a lot of people from outside started coming and investing heavily, but suddenly due to some problems they started withdrawing. एंड वंस दे स्टार्टेड विथड्रॉइंग तो उनकी लोकल करेंसी का सप्लाई जो है वो बहुत बढ़ गया था और डॉलर का सप्लाई उसके सामने बहुत कम हो गया था। सो उनका करेंसी बेसिकली दे हैड टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस एंड दैट वाज अ बिग क्राइसिस ऑफ 1997, द ईस्ट एशियन क्राइसिस। वी डोंट हैव टू नो दैट मच अबाउट इट, बट वी हैव टू नो कि उस टाइम पर एक क्राइसिस आया था एंड दैट वाज प्राइमरीली ड्यू टू कैपिटल अकाउंट, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो वी वर टॉकिंग कि उस टाइम पर जब ये क्राइसिस आया था तो IMF एक्चुअली केम अप एंड क्रिएटेड रेस्क्यू पैकेजेस। सो IMF केम आउट एंड हेल्प देम एंड हेल्प द मोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमीज एंड so what they did was they tried to bring some financial system reforms and they made them capable enough to avoid any kind of defaulting. सो बेसिकली इस क्राइसिस में IMF हेल्प, तो IMF इस तरह की क्राइसिस में हेल्प करने के लिए बना था। सो ग्लोबल क्राइसिस, एक सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 में भी एक सब प्राइम क्राइसिस आया था। सो उस टाइम पर भी IMF अंडरटुक मेजर इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन सर्वेलियंस एंड इट एक्चुअली हेल्प इन, ये है, ठीक है। So that was very briefly about the history of the IMF and what it has been doing overall. But इसके functions क्या हैं? What are the main roles of the IMF? एक बहुत important role है to lend member countries facing the balance of payment crisis. अब balance of payment crisis क्या होता है? This is a very important role of the IMF to help countries when they face a balance of payment crisis. सो हमने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की थी। वेरी क्विकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की अगर हम बात करें तो लाइक वी सेड वी हैव अ करंट अकाउंट एंड वी हैव अ कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज जस्ट, आई होप यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस बिकॉज इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए सेपरेटली बिकॉज स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। वी विल जस्ट ट्राई टू ब्रश अप दीज थिंग्स हियर यहाँ पर। तो हम करंट अकाउंट की अगर बात करें तो जनरली हमारे करंट अकाउंट में क्या होता है, डेफिसिट रहता है। डेफिसिट इन द सेंस कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो जनरली सो हम इफ योर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स are less than your import, so this is going to be a negative value, तो एक deficit रहता है। Generally there is a deficit in the current account and if you total this एक डेफिसिट रहता है। जनरली कैपिटल अकाउंट में जनरली एक सरप्लस रहता है। So ये क्या, क्यों? Because many people might be coming and investing, so there is loans, there people, lot of capital is incoming, inflow of capital is more than the outflow, so basically surplus generally रहता है। So बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है? जब ये सरप्लस, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस is not able to finance your
करंट अकाउंट का डेफिसिट। देखिए जनरली ये जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी 0, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दिस वैल्यू शुड बी 0 in the sense that for equilibrium to be maintained your deficit should be equal to the surplus, ताकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा जा सके। तो जनरली होता क्या है, इसको 0 करके रखना पड़ता है, so the sum of this should be 0. So what happens is when your surplus is a lot and deficit is not that much, so जो surplus amount है वो क्या करेगा, the central bank of your country will keep it as a part of its forex reserves. तो ये forex reserve में चला जाएगा whatever the surplus ये। So very hypothetically let us take some numbers. कोई नंबर ले लेते हैं, डॉलर्स में ले लेते हैं $billion, ठीक है, $1 billion ले लेते हैं, जस्ट वेरी हाइपोथेटिकल नंबर्स। तो लेट अस से एक कैपिटल अकाउंट सरप्लस जो है, सरप्लस है लेट्स से $100 billion इज कैपिटल अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दैट लेट अस से दैट इज, and current account deficit let us say is something like let us say $30 billion. This is very hypothetical numbers, this is not actually true, or let us keep it could be rather more, अगर compare करें तो -70 का deficit है, $70 billion। अब यहाँ पर इफ यू एड दिस, तो यहाँ पे क्या है, इफ यू एड दिस अप यहाँ पर सरप्लस होता है $30 billion का। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कोई कंट्री का सेंट्रल बैंक इसको अपने पास रख लेगा इन द फॉरेक्स रिजर्व, दिस विल गो इनटू द फॉरेक्स रिजर्व सो दैट उसको 0 करके रख दिया जाए, सो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। अब होता क्या है कि लेट अस से ऑपोजिट केस है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में देयर इज अ surplus of 70 but current account में there is a deficit of 100, तो what is it, the total will be -30। अब ये कैसे इसको 0 करेगा, सेंट्रल बैंक will give supply money from its forex reserves and make it 0, the central bank will have to give। कभी कभी क्या होता है कि there is not enough reserves to fund the deficit and उस टाइम पर balance of payment crisis हो जाता है। कभी सेंट्रल बैंक के पास there is not enough there are not enough reserves to fund this balance of payment deficit, and ये जो deficit है उसको fund नहीं कर पाता है and that results in a balance of payment crisis। तो इस तरह से balance of payment crisis होता है and इस केस में क्या होता है, IMF comes into the picture, so IMF lends money and इस balance of payment को meet करने के लिए IMF helps। तो इसके अलावा IMF lends money to replenish international reserves and it's to also stabilize currencies के stability को maintain करने के लिए भी IMF helps। अब करेंसी का स्टेबिलिटी कैसे चेंज होता है, सी इफ योर लेट्स से इंडिया की बात ले लेते हैं, जब डॉलर का सप्लाई रुपी के सप्लाई में अगर बहुत सारा डॉलर है सप्लाई में, ठीक है, अगर कंपेयर टू रुपी का सप्लाई, तो क्या होगा, रुपी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन। ऑपोजिट केस क्या होता है कि अगर रुपी का सप्लाई बहुत बढ़ गया इन कंपैरिजन टू डॉलर, सो रुपी का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। सो देयर कैन बी अ वॉलेटिलिटी डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई ऑफ द रुपी एंड डॉलर। सो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलना पड़ता है। एंड ये एक्सचेंज रेट्स जो है, सी हमारी कंट्री में जो है देयर इज a hybrid system कि हम जो है we don't go for completely floating exchange rate, neither do we go for fixed exchange rate। जहां इंटरवेंशन की जरूरत होती है there the central bank intervenes। तो क्या होता है कि to maintain this particular currency, to stabilize these currencies, IMF can help। IMF also helps in strengthening conditions for economic growth। तो इंडिया में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था एंड 1990s में, इन द 1991, तो उस टाइम पर इंडिया एक्चुअली टुक हेल्प फ्रॉम द IMF, बट IMF हैड पुट फॉरवर्ड सर्टेन कंडीशंस इन, दे सेड कि हम वी विल गिव यू द मनी, we will lend you the money, but they wanted India to become more liberalized as an economy, and then we went for those reforms that took place and we became more liberal, we liberalized, we went for liberalization post that period जब हमारा balance of payment crisis हुआ था, and then we had to borrow from the IMF। तो IMF का role ये है, we have to understand this। IMF also has a role of economic surveillance। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ओवरसी करता है एंड ऑल्सो सीज
the financial policies of its member countries. तो IMF क्या करता है, वार्न करता है, इट हाईलाइट्स कि ये रिस्क है आपके इकोनॉमी में, and then accordingly it advises policy adjustments. So it can actually help in predicting certain crises. It can help in surveillance, basically. That is a big role that it has to play. एक और फंक्शन यहाँ पे IMF का है कैपेसिटी डेवलपमेंट. इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, सेंट्रल बैंक्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, टैक्स अथॉरिटीज. सो इट हेल्प्स टू मॉडर्नाइज बैंकिंग. सो कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है इट डज, and it helps countries thus progress towards the sustainable development goals. So this was about the three main roles of the IMF, and I hope we also gave some additional information इसलिए दे दिया because we have to have an understanding of what is happening. And so though this might be a little longer, the video, but it is important to have a holistic understanding about the IMF when we talk about the IMF. So yes, now we'll discuss the structure of the IMF. About the structure of the IMF. तो जब हम structure of the IMF की बात करते हैं, very quickly we'll see this. यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं about the Board of Governors. Board of Governors of the IMF. तो Board of Governors में there is one governor plus one alternate governor for every member country. तो जितने भी members हैं उसमें से एक गवर्नर आता है, and then there is one alternate governor, and हर member country दो गवर्नर्स को अपॉइंट करती है, एक गवर्नर एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर. तो जनरली यहाँ पर जो गवर्नर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है कंट्री का, या फिर हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि हाँ, इट कुड बी द हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक. एंड ये हर साल में एक बार मिलते हैं एंड ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का काम ये होता है, अगर हम सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. एक और फंक्शन यहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ये है कि दे इलेक्ट और अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, और इसमें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, अब ये वाले लोग जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, 189 मेंबर्स अगर हैं तो हर मेंबर्स में से हर मेंबर कंट्री में से दो लोग जाते हैं, वन गवर्नर वन ऑल्टरनेट गवर्नर, और इनका काम होता है डे टू डे अफेयर्स, पॉलिसी डिसीजंस को नॉट डे टू डे अफेयर, सॉरी, पॉलिसी डिसीजंस को लेना, एंड डे टू डे अफेयर्स तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है बेसिकली. So quotas increase करना, we will discuss about quota, and then there is the special drawing rights. The special drawing rights का allocation we will talk about it, and नए members को admit करना and किसी member को हटाना, इस तरीके का काम जो है ये board of governors का होता है. And अगर articles of agreement, जो basically Bretton Woods conference जो initially sign हुआ था, उसमें there was this article of agreement. So उसमें अगर amendments लाने हैं तो that इनका काम है ये करना. तो board of governors जो है यहाँ पर board of governors is actually advised by two ministerial committees. तो दो ministerial committees हैं, and those ministerial committees are, one of them is International Monetary and Financial Committee, IMFC, and दूसरा है Development Committee. ठीक है, one is International Monetary and Financial Committee and the second is Development Committee. तो बेसिकली क्या होता है, जनरली IMF के जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है साथ में एक बार वंस इन अ ईयर मिलते हैं, एंड एक जनरली IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है वो साथ में एनुअल मीटिंग होता है, एंड वहां पे ये लोग अपना इंस्टीट्यूशन का वर्किंग ये सब डिस्कस करते हैं, राइट. और एक और चीज यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, बेसिकली हमने शुरू में 189 बोला था, 189 नहीं 190 मेंबर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे भी 190, इट्स अ स्मॉल करेक्शन, तो डजंट मैटर. 190 गवर्नर्स, तो 190 यहाँ पे IMFC में इट हैज 24 मेंबर्स. ठीक है, IMFC में कितने मेंबर्स हैं, 24 मेंबर्स हैं जो ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 190 गवर्नर्स. 190 गवर्नर्स का जो पूल है उसमें से 24 मेंबर्स को ड्रॉ किया जाता है, एंड इसमें दे कम इनटू दिस, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, एंड दस इट रिप्रेजेंट्स ऑल मेंबर कंट्रीज. तो सारी मेंबर कंट्रीज से एक
का जो पूल है वहां से सिलेक्ट किया जाता है, 24 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। इसका काम क्या है आईएमएफसी का? आईएमएफसी का काम है डिस्कस करना जो मैनेजमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम्स का। अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये प्रपोजल रखे, if executive board puts forward this proposal of amending the articles of agreement, तो उसके बारे में डिस्कशन भी आईएमएफसी करता है। एंड कोई भी मैटर जो कंसर्न, कॉमन कंसर्न का है जो ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, दैट इज डिस्कस्ड बाय द आईएमएफसी। अब डेवलपमेंट कमेटी का काम क्या है? डेवलपमेंट कमेटी एक जॉइंट कमेटी है, दैट इज इट इज अ जॉइंट कमेटी ऑफ 25 मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ से भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें से 25 और वर्ल्ड बैंक, तो साथ में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एक से मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं और इनका काम है ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनको एडवाइस करना और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक को भी एडवाइस करना कौन से मैटर्स पे? ऑन मैटर्स, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ऑन मैटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो ऑन डेवलपमेंटल इशू, ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक फोरम की तरह हम मान सकते हैं इसको, ये जो डेवलपमेंट कमेटी है, कि अगर डेवलपमेंट, क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज को डिस्कस करना है, उसके ऊपर एक इंटरगवर्नमेंटल कंसेंसस बिल्ड करना है, तो देन दिस कैन बी थॉट ऑफ एज एन intergovernmental forum. It can be thought of as a forum to arrive at an intergovernmental consensus, right? The next thing is the executive board. IMF का जो executive board है, ये क्या है? ये एक 24 मेंबर कमिटी, 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड है बेसिकली। एंड इसको कौन इलेक्ट करता है? इसको जो हमारा इससे पहले हमने देखा था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, दे इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स। सो इसका काम क्या है? इसका काम है डे टू डे एक्टिविटीज को देखना, डे टू डे एक्टिविटीज को देखना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम है। आईएमएफ का डेली बिजनेस ऑफ द आईएमएफ एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसको कुछ पावर्स, जो पावर्स इसको डेलीगेट करते हैं उसको ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक्सरसाइज करता है। एंड साथ ही साथ अग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट के थ्रू भी इनके ऊपर कुछ पावर्स कॉन्फर्ड हैं, थ्रू दैट ऑल्सो दे एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स। अब बेसिकली दैट इज इट। सो ये हो गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो अपॉइंट करता है एक प्रेसिडेंट को ऑफ द आईएमएफ। सो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट और ये 5 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है जो प्रेसिडेंट होता है। एंड हमेशा से अभी तक यही रहा है कि जो प्रेसिडेंट रहा है आईएमएफ का वो हमेशा एक यूरोपियन ही रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन। अब ये तो हो गई कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीजें। अब हमें कुछ और चीजें भी समझनी है, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं दैट माइट बी इम्पोर्टेंट। अगर हम फैक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो लेट अस हैव एक look at the reports that are published by the IMF, which can be important from the prelims point of view. That is, the World Economic Outlook is published by the IMF. There is this Global Financial Stability Report that is published by the IMF, and then there is this Fiscal Monitor Report that is published by the IMF. ये important reports हैं, so this we will try to remember. And one more small fact that we can remember here is that अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, जिसको ऑल्सो बुलाया जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके लिए यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द आईएमएफ फर्स्ट, तब देन यू कैन बिकम। सो दिस इज मेंबरशिप ऑफ द आईएमएफ इज अ प्री रिक्विजिट टू द मेंबरशिप इन द वर्ल्ड बैंक। अब फिलहाल जो लेंडिंग कैपेसिटी है आईएमएफ का, दैट इज अबाउट $1 ट्रिलियन। अब आईएमएफ लेंड तो करता है, पर आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है लेंड करने के लिए? तो समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आईएमएफ के पास एक तिजोरी है, ठीक है, देयर इज अ तिजोरी। अब जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें वो लोग इसमें पैसा डालते हैं। अब किस हिसाब से डालेंगे? हाउ मच विल दे पे टू दिस, हाउ मच विल दे हैव टू पुट इन दिस पर्टिकुलर तिजोरी? तो आईएमएफ जब ज्वाइन करता है कोई पर्टिकुलर मेंबर कंट्री, तो वो क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर तिजोरी है, वील कॉल इट आईएमएफ की, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करता है एंड दैट कंट्रीब्यूट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसको क्या कहते हैं? कोटा सब्सक्रिप्शन। सो इट इज कोटा, देयर इज अ कोटा।
कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट द आईएमएफ हैज, दैट इज नोन एज अ कोटा फॉर्मूला। अब ये कोटा फॉर्मूला जो है ये एक वेटेड एवरेज है, बहुत सारी चीजों का, अलग अलग चीजों का इतने डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अ वेटेड एवरेज जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना इस तिजोरी में रखेगा या कौन कितना who will put how much money in this. That is basically एक वेटेड एवरेज है जीडीपी का, इट इज ऑफ ट्रेड ओपननेस, कौन सी कंट्री में ज्यादा ओपननेस है ट्रेड का, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व्स, इन सारी चीजों के लाइक डिफरेंट थिंग्स आर देयर एंड उसके हिसाब से एक कोटा इज डिसाइडेड, कोटा इज अराइव्ड अपॉन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज बेसिकली कोटा इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दैट द मेंबर कंट्री मेक्स and this is one way in which IMF raises money. और भी तरीके हैं, there is something known as new arrangements to borrow. बहुत सारी कंट्रीज रेडी होती है आईएमएफ को लेंड करने के लिए थ्रू दिस न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एक्चुअली रेजिंग मनी। देन बायलैटरल बोरोइंग अग्रीमेंट्स भी आईएमएफ करता है, जिसको कहा जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जहां पे आईएमएफ खुद एक बायलैटरल अग्रीमेंट में एंटर करता है विद सर्टेन मेंबर कंट्रीज, ताकि जब फाइनेंसिंग की जरूरत हो तो उसको मीट कर सके। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कोटा। कोटा मेन मेथड है, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो क्या होता है कि कंट्रीज जो है यहाँ पर दे पुट पैसा, और इसके बदले में उनको क्या फायदा मिलता है, दे गेट अ सर्टेन इंटरेस्ट। तो इसको हम आईएमएफ की तिजोरी बुलाएं अगर, तो अगर कंट्री ए है तो दे डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट एज पर देयर कोटा। सी, एक बैंक की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो एक कंट्री ए है जो इसमें डिपॉजिट करती है, उसको क्या मिलेगा इसके बदले में, उसको इंटरेस्ट मिलता है। काफी कम इंटरेस्ट रहता है, 0.05% इंटरेस्ट दे गेट, बट दे डू गेट एन इंटरेस्ट। एंड कितना डिपॉजिट कौन करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस कोटा फॉर्मूला। एंड एक फॉर्मूला है आईएमएफ का, ठीक है। तो जीडीपी जिसका, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद जीडीपी, जिसका ज्यादा जीडीपी है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। एंड ओपननेस, ये सारे पैरामीटर्स हैं। अब कंट्री बी, अगर देयर इज अ कंट्री बी हु हैज टू बोरो, सो दे कैन बोरो फ्रॉम द आईएमएफ, एक सर्टेन लिमिट है। एंड how much can they borrow, that is not very relevant for us, but they can borrow some X percentage of their quota on an annual basis, and then एक cumulative basis पर भी they can borrow some other Y percentage of this, basically 145% of the quota वो borrow कर सकते हैं, and so things like that. So then when they repay to the IMF, they have to pay a certain interest that is about 1.05 के आसपास. I mean, this is a general thing. अब ये कितना इंटरेस्ट है, क्या है, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर अस, बट ये ऐसा चलता है सिस्टम। अब कौन कितना पैसा यहाँ पर जमा करेगा, दैट इज डिनोमिनेटेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर करेंसी, नॉट इन रुपी, नॉट इन डॉलर, इट इज डिनोमिनेटेड इन अ स्पेशल यूनिट ऑफ द आईएमएफ दैट इज नोन एज SDR, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है, दिस इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ अकाउंट. Quotas are denominated in this particular SDR, in the sense that this country, there is a country A, अगर उसका कोटा लिखना है तो उसको SDR में लिखेंगे. So this country A has to deposit, let us say, Z amount of Z SDRs, like that. So SDR is like a unit of account of the IMF. अब ये SDR का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्लिसिट मेथड है. वेरी क्विकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि SDR कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो एक बास्केट ऑफ करेंसीज ली जाती है. सो देयर इज अ बास्केट, SDR बास्केट ऑफ करेंसीज. सो व्हाट आर दोस करेंसीज? तो ये सारी करेंसीज हैं. ठीक है, देयर इज दिस जापानीज येन, देयर इज ब्रिटिश पाउंड, देयर इज यूरो, देयर इज US डॉलर, देयर इज चाइनीज रेनमिनबी. सो ये करेंसीज ही हैं. ये सबसे लेटेस्ट एडिशन ये है 2016 में, आई थिंक 2016 में ऐड किया गया था. सो इन करेंसीज के बेसिस पर इन करेंसीज का एक वेट असाइंड है. ये क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है? देखिए, SDR को एक्सप्रेस करते हैं फाइनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. ठीक है, अगर हमें कन्वर्ट करना भी है तो हम क्या करेंगे, इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे. तो किस बेसिस पर करेंगे? इस बेसिस पर करेंगे कि इन ये सारी जो करेंसीज हैं इनको एक वेट असाइन किया गया है, एक परसेंटेज, एंड उस वेट के हिसाब से देन उनका जो रेट है इन एक्सचेंज ऑफ द डॉलर. जैसे कि अगर हम जापानीज येन की बात कर लें तो समवेयर अराउंड 8.33 इसका वेट है.
ठीक है, and then there is British pound that is 8.09, and then there is euro that is about 30.93, there is US dollar 41.73, and there is Chinese renminbi that is about 10.92. अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ये सब फिगर्स ऑफ कोर्स जाने, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अब रेट आज के तौर पर अगर हमें SDR का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें ये रेट लेना पड़ेगा. यहाँ पर आज के तौर पर एक डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी जापानीज येन, एंड $1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड, ब्रिटिश पाउंड. $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी यूरोज. इस तरह से $1 तो डॉलर में तो $1 US ही रहेगा कितना. सो दिस इज व्हाट वी डू. सो व्हाट वी डू हियर इज वेट इनटू रेट करेंगे. तो एक्सचेंज रेट और वेट का हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फाइनली वील सम इट अप. ठीक है, इसका समेशन हम करेंगे यहाँ पर, एंड इस तरीके से एक SDR का वैल्यू जो है फाइंड आउट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर. एंड दिस चेंजेस बिकॉज, ये क्यों चेंज करता है, दिस चेंजेस बिकॉज जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज कर सकता है. सो अबाउट क्या होता है, जनरली वन SDR इज अबाउट 1.399 और समथिंग, 1.4 US डॉलर. इस तरीके का एक वैल्यू रहता है एक SDR का. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज अ बेसिकली यूनिट ऑफ अकाउंट. कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगी इनटू दैट तिजोरी दैट वी सॉ, हमारी इस तिजोरी में, IMF की तिजोरी में कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगी, दैट इज डिनोमिनेटेड इन SDR एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कोटा. तो ये जो SDR का करेंसी वैल्यू है, ये हर दिन इट इज कैलकुलेटेड डेली. तो हर कंट्री को अपना जो परसेंटेज कोटा है उसके हिसाब से दे हैव टू डिपॉजिट. तो लेट अस से hypothetically, let us say IMF says कि हमारी lending capacity, let's say 1 trillion. IMF wants to say कि $1 trillion is the lending capacity. So according to the quota, let us say US has 17% quota. So 17% of the amount has to be actually deposited in this तिजोरी in terms of SDR. उसको SDR में convert किया जाएगा और इतना X amount of X SDRs have to be deposited by USA in the तिजोरी. Y SDRs according to the quotas have to be deposited by India and things like that. So ये SDRs जो है, they have to be deposited in this तिजोरी in terms of SDR. ठीक है, विथड्रॉ भी किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ SDR. फिर उसको अकॉर्डिंगली कंट्रीज अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकती हैं इनटू द डॉलर, देन इनटू देयर ओन करेंसी. किसका कितना कोटा है दैट वी कैन जस्ट चेक. सो दिस वाज अ ग्राफिक दैट वाज देयर ऑन रोनाल्डो's वेबसाइट. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस का कोटा says about, the pie chart says 17.7%. We don't have to remember these figures, it's just for an idea. पर यहाँ पे ये देखिए कि USA का कोटा इतना है, इंडिया का कोटा कितना है, just 2.4%. So ये डिसाइड होता है कोटा, as I said उसका एक फॉर्मूला है. ठीक है, जो GDP के हिसाब से डिसाइड होता है. बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं बेसिकली. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएस का इतना है, सबसे ज्यादा है. एंड देन वी हैव जापान 6.5, जर्मनी 6.1, यूके 4.5%. सो दिस इज इस तरीके का एक रफली वी हैव टू नो कि व्हाट इज द रफ, वी हैव टू हैव अ रफ आइडिया कि किसका कितना कोटा. वी डोंट हैव टू रिमेंबर दीज नंबर्स ऑफ कोर्स, दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया. अब बेसिकली ये कोटा ये भी डिसाइड करता है कि किसका कितना वोटिंग पावर होगा, यानी कि जो ज्यादा SDR कंट्रीब्यूट करेगा उसका उतना ही वोटिंग पावर होगा IMF में. सबका इक्वल वोटिंग पावर नहीं है IMF में, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कोटा. जिसका ज्यादा कोटा उसका ज्यादा वोटिंग पावर, यानी कि यूएस का वोटिंग पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 17% कोटा सबसे ज्यादा. तो अगर हम कोटास की बात करें तो कोटा बेसिकली डिटरमाइंस द वोटिंग पावर. ठीक है, डिटरमाइंस द वोटिंग पावर एंड इट डिटरमाइंस द बोरोइंग लिमिट. डिपेंड्स ऑन योर कोटा. इफ यू हैव अ लेसर कोटा यू कैन बोरो लेस, इट्स लाइक दैट. जिसका ज्यादा कोटा वो ज्यादा बोरो कर सकता है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. एंड SDR एलोकेशन ऑल्सो इज डिसाइडेड बाय द कोटा. तो SDR एलोकेट होगा डिपेंडिंग, जिसका ज्यादा कोटा उसके पास ज्यादा SDR. इन द सेंस जिसके पास ज्यादा कोटा होगा दे हैव टू ऑल्सो
provide more of financial resources to the IMF. अब बास्केट में ये करेंसीज जो हैं, एसडीआर कैलकुलेट करने के बास्केट में ये करेंसीज जो हैं वो कैसे डिटरमाइन होती हैं, बाकी करेंसीज इसमें क्यों नहीं है? वो आईएमएफ का अपना एक क्राइटेरिया होता है, दैट इज बेसिकली एक्सपोर्ट क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है जहाँ पे टॉप 5 एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे जगह मिलेगा, एंड जिसका करेंसी बहुत ही फ्रीली कन्वर्टेबल है उसको यहाँ पे जगह मिल सकता है. सो बेसिकली अभी यही वाले हैं, यही करेंसीज हैं जो इंक्लूडेड हैं. अब एक फैक्ट के तौर पे एसडीआर को पेपर गोल्ड भी बुलाया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, इट वाज वैल्यू ऑफ एसडीआर वाज डिटरमिन्ड ऑन बैक में गोल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड दे यूज्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड से कितना गोल्ड इज इक्वल टू दिस मच एसडीआर, सो यू कैन कॉल इट पेपर गोल्ड. एंड सी एसडीआर जो है, ये देखिए, ये आईएमएफ बेसिकली इसका जो वैल्यू होता है दैट इज डिनोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, कि 1 एसडीआर इज इक्वल टू दीज मेनी डॉलर्स. अब एसडीआर कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं? एसडीआर जो है दे कंट्रीज कैन होल्ड इट एज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेक्स रिजर्व्स. ठीक है, दे कैन होल्ड इट एज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि वो एसडीआर अपने पास ले सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर डाल सकते हैं, सो इट विल बी वैलिड. बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि सी एसडीआर कोई क्लेम नहीं है, ना ही एक करेंसी है आईएमएफ का. रादर हम ये क्या कह सकते हैं कि इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स. तो इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. एसडीआर का और एक यूज क्या हो सकता है? एसडीआर जो है, कंट्रीज कैन यूज एसडीआर अपने ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं. आईएमएफ के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दे कैन यूज SDRs and they can repay their loans in terms of SDRs. They can pay the interest to the IMF in terms of SDR. हमने देखा था कि they can borrow from the SDRs, so they can borrow from the IMF. So when they repay the loans or when they repay the interest, when they pay the interest, all of that can be done in SDRs. ठीक है, so they can pay for increasing their IMF quota and so on. अब members क्या कर सकते हैं? They can sell their SDR allocations if they want. एक चीज होती है reverse position या reverse tranche, sorry, reserve position in the IMF. So see, subscription of the quota जो है it consists of 2 parts. कोटा की अगर हम बात करें तो उसमें 2 parts होते हैं. तो बेसिकली कोटा के 2 कंपोनेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट एंड डोमेस्टिक करेंसी कंपोनेंट. तो अगर हम कोटा की बात करें, लेट अस से देयर कंट्री, एक कंट्री है जिसको इतना हैज टू कीप इतना एक्स अमाउंट एज द कोटा, जितना इसको इतना एक्स अमाउंट रखना है. अब ये क्या कर सकता है? एक्स अमाउंट का जो 25% होगा दैट हैज टू बी केप्ट एज SDRs या फिर फॉरेन करेंसीज में, एंड बाकी जो है इट कैन कीप इन, सो इट कैन कीप अदरवाइज. तो ये इसके 2 कंपोनेंट्स डोमेस्टिक करेंसी कंपोनेंट में रख सकता है. सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली ये जो इसको रखना पड़ता है 25% एज SDR या फिर फॉरेन करेंसी में, दैट इज टर्म्ड एज द रिजर्व पोजिशन ऑफ द IMF और द रिजर्व ट्रांच. इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट एक क्वेश्चन भी था प्रीलिम्स में, एक बार आया था, आई थिंक लास्ट ईयर anyhow or last year I suppose. So about the reserve tranche, तो उसमें इतना ही पूछा गया था कि it's associated with what, so it's IMF, it's associated with the IMF. Okay, this is what we have to remember. अब हमें यहाँ पर समझना है कि हमें इस चीज पर PhD करने नहीं बैठना है. ऑलरेडी हमने जरूरत से ज्यादा ही डिस्कस कर लिया है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोटा, SDRs क्या होते हैं. इफ वी जस्ट ऐसे ही अगर हम पढ़ने बैठ गए कि SDR ये रिफॉर्म्स चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, it becomes a useless thing. So we have to have a background understanding, we have to have a holistic approach so that we understand what are the terms associated, so that when we talk about the when we talk about the criticisms of the IMF, we talk about the reforms needed, we should be able to understand the terms that we are using. So I hope this is clear. So हमने ये discuss कर लिया quotas in the IMF. We have also discussed the special drawing rights. तो IMF को लेकर कई सारे क्रिटिसिज्म्स भी रहे हैं.
उसमें से एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि जो वोटिंग राइट्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ द रिच कंट्रीज। एंड ये जो IMF का गवर्नेंस है वो एक एरिया ऑफ कंटेंशन रहा है फॉर डेकेड्स। क्या रहा है कि IMF को और वर्ल्ड बैंक को यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। IMF का president, as I said before, has always been a European. World Bank has the helm of affairs of World Bank has always been held by an American. So we see that there is little hope for emerging economies to come up, and the emerging economies do not even have a large voting share because we see quota allocation is more in favor of the countries such as USA. अब IMF कहता है कि उसका एक फंक्शन है सर्वेलियंस, तो ये भी क्रिटिसिज्म रहा है कि इट हैज फेल्ड ऑन दैट फ्रंट। बहुत सारे क्राइसिस ऐसे हुए हैं दैट IMF वाज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट। जैसे कि क्राइसिस हुआ था 1995 में, दैट इज मेक्सिको क्राइसिस, एंड दैट उसको IMF प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था सर्वेलियंस के मामले में। सो दस इट इज सेड टू हैव फेल्ड, ये एक क्रिटिसिज्म है। ईस्ट एशियन क्राइसिस में भी इट डिड नॉट रियली डू मच, एंड बेसिकली सब प्राइम क्राइसिस के बारे में भी ये कहा जाता है कि IMF डिड नॉट वार्न अबाउट द सब प्राइम क्राइसिस, एंड बाकी भी बहुत सारे अलग अलग क्राइसिस हैं जिसके बारे में वो वार्न नहीं कर पाया। एक और क्रिटिसिज्म ये है कि जो SDR है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है। बेसिकली एक मेजर क्रिटिसिज्म है जो है लेके कोटा को लेकर, कोटा डज नॉट फेवर द इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखिए, अगर कोटा सिस्टम में कोई रिफॉर्म लाना है तो क्या वहां पे जरूरत है, it's basically impossible almost to make any reform in the quota system because any reform requires more than 85% of the total votes. अब ये जो 85% है that does not count 85% of the countries, बट यहाँ पे 85% क्या है, इट इज 85% ऑफ द वोटिंग पावर, और जिसमें से 17% तो US के पास ही है। तो ऐसी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज के कंसेंट के बिना कुछ रिफॉर्म लाना बहुत ही मुश्किल है ऐसे सिनेरियो में। तो अब रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करें तो वी हैव टू रिव्यू द IMF's रोल इन द बैकड्रॉप ऑफ उसके एनुअल मीटिंग्स हुए थे 2021 में ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द IMF, एंड वहां पर कुछ चीजें आई। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कोटा की। अब कोटा में देखिए हम इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रेंड ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स having a larger share in the global output or the global what you can call the GDP, and so इसके बैकड्रॉप में इम्पॉर्टेंट है कि कोटा सिस्टम में एक रिफॉर्म लाया जाए। वी हैव टू रिव्यू द कोटा सिस्टम। अब एक और चीज यहाँ पर ये देखी गई कि वर्ल्ड बैंक, दिस इज ऑल्दो इट्स अबाउट वर्ल्ड बैंक बट क्योंकि ये कनेक्टेड है, रिसेंटली जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, देयर वाज वर्ल्ड बैंक सेड वील डिसकंटिन्यू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो एक जरूरत है यहाँ पे टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इस टाइम पे जब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक हैज स्टॉप्ड और डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू। कमिंग बैक टू द कोटा पॉइंट, देखिए हर IMF मेंबर का एक कोटा, वी हैव सीन देयर असाइन्ड अ कोटा और कंट्रीब्यूशन, एंड जो मेंबर का कोटा है दैट आल्सो डिटरमाइंस इट्स वोटिंग एंड it also determines its borrowing capacity. So quota becomes a very important point that we have to keep focusing on when we review the role of the IMF, and also when we talk about the criticisms of IMF. So यहाँ पर quota system ऐसा है कि it is designed in such a way that it will make the wealthy countries have a more say, and जब रूल्स की रिवीजन की बात आती है हर चीज में उनका ज्यादा से है। अब जो कंट्रीज जो है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उन कंट्रीज के लिए दैट हैव ग्रोन इकोनॉमिकली एंड
बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव बीन अंडर रिप्रेजेंटेड बिकॉज their वोटिंग पावर्स जो है वो दे लैग बिहाइंड, जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज। अब यहाँ पर रिफॉर्म्स कहाँ लाने पड़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जैसे हम देख सकते हैं हैज टू कम इन द कोटा सिस्टम। ये जो कोटा सिस्टम है यहाँ पर द रिफॉर्म शुड रिफ्लेक्ट जो इकोनॉमिक रियलिटीज जो चेंज हो रही हैं, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर कोटाज। ठीक है, जब डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द कोटाज। दे शुड गेट इंक्रीज्ड वोटिंग राइट्स। जब कोटा बढ़ेगा उनके वोटिंग राइट्स भी इंक्रीज होंगे। जैसे कि कोटा ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, उसको बढ़ाना चाहिए बिकॉज दे आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली। तो किसी का बढ़ा रहे हैं तो कहीं से तो आपको कोटा कम करना पड़ेगा, तो यूरोपियन कंट्रीज का कोटा जो है आप कम कर दीजिए। ऑल्सो IMF should actually look to help the lower income countries। ठीक है, IMF जो है इट शुड फोकस ऑन लोअर इनकम कंट्रीज एंड साथ ही साथ देखिए डेवलपिंग कंट्रीज कुछ ऐसी हो गई हैं, जैसे कि कुछ एशियन कंट्रीज हैं जो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के बेसिस पर उसके स्ट्रेंथ पर फंड्स रेज कर सकती हैं। सो IMF शुड एक्चुअली हेल्प सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन फंड रेजिंग एक्टिविटीज। अब क्लियरली एक मैनेजमेंट में भी फ्लॉ है, लाइक वी सॉ कि जो IMF का प्रेसिडेंट हमेशा रहा है दैट हैज ऑलवेज बीन अ यूरोपियन। सो द IMF मैनेजमेंट सिस्टम should be modified। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों में एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट ऐसा है, लाइक वी सेड कि IMF का हेड जो है वो यूरोपियन रहेगा एंड जो हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक है वो अमेरिकन रहेगा। सो इट इज टाइम नाउ, इट इज हाई टाइम दैट दिस शुड बी रिकंसिडर्ड एंड IMF शुड रीथिंक ऑन इट। About it, as far as IMF is concerned, we have understood the reviews, we have understood the criticism, we have reviewed the role of the IMF, we have understood we have understood the different aspects, and we have understood it from we have covered the aim, we have covered the structure of the IMF, we have talked about the SDR, we have talked about the quotas, and we have holistically covered this. And now I think we are in a good position to be able to answer the questions that we began our discussion with. So have a look at it and try and answer these questions within the word limit of 250 words. एक और कारण से IMF न्यूज में भी था रिसेंटली एंड इसीलिए इट बिकेम इम्पोर्टेंट कि हम इसको डिस्कस करें। एंड IMF रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में था बिकॉज इट डिसाइडेड टू इंक्रीज द जनरल एलोकेशन ऑफ द SDR। बेसिकली so they created new SDRs and member countries के quotas के हिसाब से these SDRs would be allocated to them. Basically the rationale that they gave behind this increased SDR allocation was that they wanted to help economies that are affected by the COVID-19 pandemic and enable poor countries to import vaccines and also to enhance global liquidity. So they came up with increased allocation of SDRs. इसलिए न्यूज में था एंड दिस इज अबाउट इट। इसमें इतना ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। वी हैव सीन द स्ट्रक्चर एवरीथिंग, वी हैव सीन द वर्किंग of SDR कैसे क्या है and all of that. So yes, so this is about it in this discussion. I hope this was useful and yeah, that is about it in this video.